Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We wish you all a wonderful morning today. हम आप सबको एक गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं, वंडरफुल मॉर्निंग कहना चाहते हैं। Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते And हैं a very warm welcome from the Heart of Christ Church. और हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से हम हर एक का स्वागत करते हैं। As we begin the service, we come with zeal and enthusiasm to worship the Lord. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम बहुत ही उत्साहित आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Before we begin the service, we're going to read from the scriptures from the book of Psalms, chapter 103, beginning from verse 17 to 22. हम सभा की शुरुआत करने के पहले हम वचन को खोलेंगे। हम भजन संहिता का किताब 107 उसमें 17 से लेकर हम पढ़ेंगे। As I'm going to read in English and then sister will read in Hindi. So beginning from verse 17. But the mercies of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to the children's children, to such as keep his covenant, and to those who remember his commandments to do them. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding to the voice of his word. Bless the Lord, all you high host, you ministers of his, who do his pleasure. Bless the Lord, all his works, in all the places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Amen. भजन संहिता उसको 103 में हम पढ़ते हैं 17 वचन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करते उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टल्लुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तो यहोवा का धन्य कह। Hallelujah. हालेलुया। We say amen. आमेन कहेंगे। As we read through the scriptures, one common word we see is that bless the Lord. और जैसे हमने इतने वचन पढ़े, हम एक चीज देखते हैं जो सामान्य है हर वचन में, और वो है कि परमेश्वर धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। How wonderful, dear brothers and sisters, is to come together in unity to worship the Lord. इतने खुशी की बात है जब हम एकांत होकर परमेश्वर की आराधना करने आते हैं। Worship is not just only to praise and sing hymns and songs, आराधना केवल गाना गाना ही नहीं होता, but worship is every day's life, whatever we do in our day-to-day work. और जो हम हर दिन करते हैं वही आराधना होता As है। long as it brings glory and honor to God is worship. और जब तक परमेश्वर को आदर मिलता है, महिमा मिलता है, वो आराधना है। Hallelujah. हालेलुया। In everything we do, dear brothers and sisters, put God first in your और life. जो कुछ भी हम करते हैं, पहले स्थान परमेश्वर को दो। And He will elevate you in each and everything, whatever you और do. जो कुछ भी कार्य तुम करते हो उसमें परमेश्वर तुम्हें जरूर उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And God even has done mighty miracles in our lives. और परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवनों में किया है। As I want to share a very good testimony that this week God has blessed us with a baby child. और एक गवाही मैं कहना चाहता हूँ कि ये हफ्ते में परमेश्वर ने एक बेटी देकर हमें आशीष किया है। All glory and honor to Him. और परमेश्वर को सारी आदर महिमा हम देते हैं। And as a family we have one new addition. और एक परिवार होके हमें एक और सदस्य मिला है। And we are so happy and excited that the Lord has blessed us with a cute little baby princess. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीष किया है एक छोटी बेटी, एक राजकुमारी देकर। And as an individual I became a father. और एक इंसान होके मैं एक पिता बना हूँ। But just an earthly father. एक दुनिया के लिए एक पिता बना हूँ। Above all else is the heavenly Father who's और looking after us. सबसे बड़ा है हमारे स्वर्गीय पिता। Because as the word says, before we could be formed in our mother's womb, He knew us. और क्योंकि वचन में लिखा है माँ के गर्भ में रचने से पहले उन्होंने हमें जाना है।
He not only knew us, but He called us as sons and daughters. और उन्होंने सिर्फ हमें जाना ही नहीं लेकिन बेटा बेटी बुलाए भी हैं। And beyond that, He called us to be prophet and prophetess. और उससे भी बढ़कर हमें भविष्यद्वक्ता बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. How wonderful our God is, dear हमारा brothers and परमेश्वर sisters. कितने महान है He is the one for everything in our और lives. वही है सब कुछ हमारे जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Are we excited today? क्या हम उत्साहित है? Come on. As we're gonna meditate upon His word, let us reflect our lives and we go into prayer. और जैसे आज हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे, हम अपने आप को जांच कर भी देखेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। Let us examine ourselves before we could introspect whatever the Lord has done in our lives. पहले हम अपने आप को जांच कर देखेंगे और देखेंगे कि उसके बाद कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया। Lord, we thank you, Jesus, for this time you have given us. परमेश्वर हम धन्यवाद कहते हैं सुंदर समय जो आपने दिया। We thank you for the miracles, we thank you for the grace, and we thank you for the mercies. प्रभु आपके जो चमत्कार है, अनुग्रह, दया है, उस सब के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। We are here, it's all by your grace and mercies. प्रभु आज हम यहाँ हैं, यह आपके अनुग्रह है। We are standing here, Father, in this wonderful morning, Sunday morning, that you are going to bless us, Father God. प्रभु आज ये सुबह के समय में हम सब खड़े हैं इसलिए क्योंकि आप हमें आशीष करने वाले हैं। Your word says, Holy, 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 Lord God Almighty. प्रभु आपके वचन में लिखा है पवित्र 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 है परमेश्वर। You are the holy of the holies, Lord. परमेश्वर आप पवित्र से भी पवित्र है। Lord, we thank you, Jesus, that you have called us as sons and daughters. प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें बेटा बेटी पुकारा है, बुलाया है। Lord, we thank you, Jesus, for our church members who have assembled to come and glorify you, प्रभु Father. धन्यवाद करते हैं हर एक सदस्य हमारे कलीसिया के लिए जो प्रभु आपने भेजा है। And we pray that, Jesus, all those viewers who are watching us live, that you will fill them with the Holy और Spirit. जो कोई आज लाइव स्ट्रीम में हमें देख रहे हैं प्रभु आज आप उन्हें भर दीजिए पवित्र आत्मा से। Lord, we pray that you will give us a heart to forgive and forget in whatever those hurts has been in our lives, oh Father प्रभु God. हमारे दिल में जो भी चोट है उन सब में बुलाने के लिए प्रभु उसको वो हर्ट को आप निकाल दीजिए हम मांगते हैं। Because you have set a perfect example that when I have forgave them, who are you not to forgive them? प्रभु आप एक उदाहरण बने कि आप जैसे दूसरों को क्षमा किए तो हम कौन है प्रभु जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। Lord, once again, we give you all the glory and honor, Father God. सारी आदर महिमा हम आपको देते In हैं। everything we do, let your name be जो glorified. कुछ भी कार्य हम करते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा हो। And let us prepare ourselves as we enter into this service, Father और God. जैसे ही आज की सभा में हम प्रवेश करते अपने आप को तैयार करते Let हैं। us have a blessed time with the worship, Father प्रभु God. आराधना में एक आशीषित समय बिताने में मदद And we कीजिए। believe that you are going to speak to this pastor to share your wonderful word, oh Father प्रभु आप God. आसमान से बात कीजिए ताकि वो शब्द आपके शब्द उनके द्वारा में मिले। And those who are not yet to find answers, you will speak to them through this service. और जिसके पास उत्तर नहीं है ये सभा के द्वारा आप उनसे आज बात कीजिए प्रभु। And let this service be a blessing to millions across और this प्रभु globe. आज की सभा बहुतों के लिए आशीष बने। Thank you, Jesus, for all the provisions you have blessed us in our lives. जो कुछ भी कार्य आपने किया उस सब के लिए धन्यवाद। And thank you for the things which are going to bless us in the future. जो कुछ भी कार्य आप फ्यूचर में भी करने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद We करते give हैं। you all the glory and honor, Father God. सारी आदर महिमा आपको मिले। We love you. In Jesus' most precious name we pray. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। We say amen. हम कहेंगे आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How wonderful, brothers and sisters, to come together in one body in Christ. और इतनी महान बात है कि हम सब एक मन में एकांत होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। Because there is no other greater event than this. और इससे भी बड़ी चीज मनाने के लिए कुछ नहीं है। You might be thinking that, okay, when you go and attend parties like birthday parties or celebrations, this is nothing compared to what actually brothers and sisters who come in unity. और हम सोचते हैं कि जब हम मनाते हैं कोई सेलिब्रेशंस मनाते हैं तो उसमें हम सब इकट्ठे होते हैं वही बड़ी बात है, लेकिन नहीं, जब हम परमेश्वर के लिए एकांत होकर आते हैं वो अलग बात है, उसके साथ तुलना नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। Let us have a blessed time. आज हम एक आशीषित समय बिताएंगे। Please stay tuned and be glued to your phone or your laptops and listen to the word, and let us worship the Lord in truth and in spirit with our whole heart, surrendering Him into Himself. और इसलिए अपने मोबाइल के साथ नहीं तो लैपटॉप में जैसे भी आप देख रहे हैं
कृपया इसमें ही ध्यान दीजिए और हम साथ मिलकर आराधना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आज जैसे यहोवा ने ये दिन हमारे लिए बनाया है, उत्साह के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के अपने आप को हम तैयार करेंगे। आमेन। जैसे ब्रदर ने हमसे वचन बांटा है, हम विश्वास करते हैं कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा सदा के लिए हमारे बीच में है। तो जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं, ये लिंक अपने परिवार दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इसमें जुड़े। कलीसिया के मेंबर से भी निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी इसमें भाग बने और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने का हमेशा एक कदम रखें। आमेन। The more you are, excited, the more you are enthusiastic, or the more you are thirsty for the word of God, surely the Lord will bless us all. Hallelujah. Amen. हम अपने आप को तैयार करेंगे जैसे हम स्तुति आराधना के लिए तैयार होते हैं। साथ में ये गाना हम सब जानते हैं। ताली बजा की खुशी के साथ हम परमेश्वर से धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा कर फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से चित करता, कपड़ों से करता, तेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। आमीन। हालेलुया। ऐसा कर भोजन से चित करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
यहोवा गवाह है। हालेलुया। आइए साथ मिलकर तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी आवाज उठाकर धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद भी काफी नहीं है जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते। Thousands of thanks is not enough, you know, to thank the Lord God for the great things that He has done in our lives. हालेलुया। आज भी जैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, हम कहेंगे धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आवाज उठाकर कहेंगे धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद की योग्य है, स्तुति के योग्य है, आराधना की योग्य है। हालेलुया। ताली बजाते उत्साह के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद 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 कहते रहेंगे। आमेन। Every move we make, every breath we take, everything that we do, let's give glory to the Lord. Hallelujah. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. जिस जिसके सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करते रहे। आमेन। आज भी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें सुरक्षित रखा, हम पर कृपा दिखाया, दया दिखाया, इसलिए हम ताली बजाते हुए we give glory to the Lord Jesus Christ. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Ways of mercy, ways of grace.
बचा के हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आमेन। God is such a good God. हमारा परमेश्वर कितना भला है। बाइबल में लिखा है उनका भलाई और करुणा सदा सदा के लिए हमारे पीछे पीछे आएगा। Surely, निश्चय, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever and ever. हम परमेश्वर के भवन में सदा सर्वदा निवास करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और आज भी परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय हमेशा उनके प्रति रहे। He always wants us to be thirsty regarding Him, क्योंकि वो भला है, क्योंकि उनका करुणा सदा सदा के लिए है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के लोग, इज़राइल के लोग, they were going round the walls of Jericho, जैसे यरीको के दीवार के वो लोग चल रहे थे, घूम रहे थे, उसके राउंड जा रहे थे। प्रभु ने उनको एक आज्ञा दिया था कि कैसे उनको चलना है, कैसे क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपना जो कार्य है उसमें वो भी एक स्पेसिफिकली गाइडेंस देते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। Whenever God tells us to do something, He specifically mentions to us the way in which we're supposed to perform it. Hallelujah. बाइबल में जब हम पढ़ते हैं बहुत सारे कार्य जो प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता द्वारा कहा होगा, बोला होगा, सभी चीजें परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऐसे करो, do it this way, do it that way करके परमेश्वर कहता है। आमीन। और वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इज़राइल के लोगों को कहा था कि जाओ और चलो हर दिन, for 6 days you walk once around the walls of Jericho, and on the 7th day you walk 7 times, 7 बार चलो। जैसे स्पेसिफिकेशंस प्रभु देते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसे क्यों कर रहे हैं, what's the purpose for God to tell all these things, but He knows. हालेलुया। वो जानते हैं। हर दिन जैसे इज़राइल के लोग चल रहे थे, जोशुआ था, याजक थे, परमेश्वर का संदूक था, जैसे वो लोग they were marching around the walls of Jericho, हर दिन जैसे एक बार वो चल रहे थे, मन में वो सोच रहे थे कि प्रभु ऐसे क्यों कर रहे हैं। पर जैसे वो चल रहे थे, एक चीज प्रभु के लोग कर रहे थे, वो है बाइबल में लिखा है कि वो लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे। The one thing that they were doing as they were walking was they were giving praise to God. They were what they were saying, what they were singing was, our God is good. परमेश्वर भला है, His mercy endures forever. उनका करुणा सदा सदा के लिए है। They are confessing, they are claiming, and they are believing that the Lord is good. कि परमेश्वर भला है, उनकी करुणा सदा सदा के लिए है। उनकी करुणा उनको अभी तक दिख नहीं रहा है, उनकी कृपा अभी तक दिख नहीं रहा है, पर जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उनके अंदर विश्वास बढ़ता है। Hallelujah. As they are praising God, faith increases. As their ears listen to their voices praising God, their faith increases. उनका विश्वास बढ़ रहा है। वो देखते हैं कि परमेश्वर का संदूक आगे जा रहा है, परमेश्वर की याजक आगे जा रहे हैं, विश्वास बढ़ता है। And as the faith increases, on the 7th day, they walked 7 times. They marched 7 times. 7 बार। किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया क्यों? Nobody questioned why. Why 7 times? Why 6 days only 1 time? ऐसे किसी ने भी प्रश्न नहीं पूछा, पर परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। God is doing something. While we wait on the Lord, जैसे परमेश्वर में हम वेट करते हैं, प्रार्थना पूर्वक ठहरते हैं, जैसे परमेश्वर में बने रहते हैं, हम कभी नहीं सोचना कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं। God is doing something. Something is happening each day. Hallelujah. Something is happening each day. हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे परमेश्वर के लोग वहां से चल रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि यरीको के लोग तो डर के मारे वो लोग कांप रहे थे। The people of Jericho, they were frightened, afraid. They did not know what to do. वो लोग तो अपने दीवारों के अंदर तो थे, पर वो दीवार उनको बचा नहीं पाया। Hallelujah. They had their security, the walls, high walls already built as a security for them, but those walls could not protect them. Hallelujah, because the Bible says God is the one who watches over a city. परमेश्वर वो है जो एक इवन शहर को, अपने घरों को संभाल के सुरक्षित रखता है। और हर दिन जैसे वो चल रहे थे, हर दिन जैसे वो लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आंखों के सामने कुछ हो नहीं रहा है, nothing was happening, they could not see something happening, nor did they see something shaking, but they walked, they obeyed God, they were faithful each day. Hallelujah. हर दिन वो चले, वो विश्वास योग्य ठहरे, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पालन किया,
चलते रहे और सातवां दिन जैसे 7 बार वो चले, as they let out the shout of victory, जैसे वो चिल्ला उठे, बाइबल में लिखा है कि यरीको की दीवार गिर पड़ी। हालेलुया, the walls of Jericho fell। ये परमेश्वर का कार्य है। This is the work of God। And as they were walking, as you continue walking in the presence of God, as you continue living for the Lord Jesus in this world, जैसे आप दुनिया में प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, एक पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए जीते हैं, दुनिया में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, maybe you're not able to see the changes in your life, पर कुछ हो रहा है। परमेश्वर शत्रु की जो फाउंडेशन है, नींव को हिला रहा है। हालेलुया, the Lord is shaking the foundation of your enemies। परमेश्वर की विरोधी की जो नींव है, हर दिन जैसे आप प्रभु के लिए चलते हैं, जीते हैं, उनका आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर शत्रु का जो नींव है हर दिन हिलाता रहता है और एक दिन वो दीवार गिरेगी, सही समय में वो दीवार गिरेगी और परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया। आज भी प्रभु इतने साल के बाद हमें ये प्रकटीकरण देते हैं ताकि हम भी विश्वास में ठहरते रहे, ताकि हम भी विश्वास में कभी हार ना माने। We should never, lose our faith, never turn back from our faith, but be encouraged each day that the Lord is doing something. The Lord is mindful of me. The Lord is thoughtful about me. प्रभु मेरा सुधि लेता है, मेरी सोचता है, मेरा विचार करता है। हर दिन प्रभु मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा है। हालेलुया। और जब हम जिसके लिए इंतजार कर रहे थे वो आता है, when we wait and we receive, that will be a great blessing for the glory of God। Amen। आइए हम आंखें बंद करेंगे। Let's all close our eyes and look up to Jesus। हम कहेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, जो कार्य आप मेरे जीवन में कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद यीशु। Thank you Lord for the good things that you're doing in my life, Daddy। Even this day if I'm not able to see it, मैं देख नहीं तो पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आप भला है। You are good। You are good, Father। You are good and your love endures forever। Hallelujah, hallelujah। आइए धन्यवाद कहेंगे परमेश्वर। आप जहाँ कहीं भी है मुंह खोल के कहिए धन्यवाद यीशु, मेरे उद्धार के लिए धन्यवाद, उस क्रूस के लिए धन्यवाद, आप मेरी सुधि लेते हैं इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आप मुझे याद करते हैं इसके लिए धन्यवाद यीशु। Thank you that you remember us, Father। Thank you that you are mindful of us, Jesus। Thank you, Daddy, that you are concerned about us। We worship you, Lord। Hallelujah। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं, हर पल हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जैसे हमने सुना अभी प्रभु, वैसा विश्वास हमारे जीवन में दिलाइए, ऐसे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं, आप कौन है हमारे जीवन में, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू उजियारा है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू उजियारा है। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी
प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु हमारा दिल आपको धन्यवाद कहता है, हमारा प्राण आपको धन्यवाद कहता है। प्रभु आज सब लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और कहेंगे प्रभु मेरा दिल धन्यवाद कहता है। लॉर्ड माय हार्ट वांट्स टू थैंक यू लॉर्ड फादर, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता है। माय सोल वांट्स टू गिव यू प्रेज लॉर्ड फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन इन माय लाइफ। आई वांट टू थैंक यू लॉर्ड। Thousands of thanks are not enough, Lord Jesus. You have remained faithful in our life, Lord. आप विश्वास योग्य ठहरे उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम
हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। स्वर्ग के हर एक जन अपने हाथों को उठाएंगे। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। स्वर की ओर, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे स्तुति देता। एक जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद हम करेंगे। हर पल आपको धन्यवाद करने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करता है, धन्यवाद करता है। आज के सुंदर दिन को देखने के लिए मौका आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज भी एक अद्भुत कार्य करने के लिए आप योग्य है, उसके लिए धन्यवाद। मिट्टी से बने लोग हैं, फिर भी दया दिखा के प्रभु, अनुग्रह दिखा के आपने हमें उठकर खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी सांस देकर आपने हमें जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये जानते हुए कि हम कुछ नहीं है, हम सब आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। एक कलीसिया होके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक परिवार होके, एकांत होके। आज जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, हर एक जन को आपके हाथों में देता है प्रभु। ये आपकी योजना के अनुसार आज आपने इन सबको इकट्ठा किया है। हम मांगते वचन अनुसार इनकी जीवन में एक अद्भुत कार्य कीजिए। हम मांगते प्रभु कि हर एक जन आपके वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार चले। आप ऐसे परमेश्वर है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आंधी में भी, तूफान में भी, आग में भी साथ में रहने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। और आज भी धन्यवाद कहते हैं। हमारे भविष्य आपके हाथों में है। शैतान की हर योजनाओं को, हर दरार को हम ईश्वर के नाम से उसको बाहर निकालते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं। पासवान को ढक के आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। कठोर हृदय को हटा के मांस हृदय हर एक को दे दीजिए प्रभु, ताकि हर एक जन वचन को वैसे ही स्वीकारे जैसे लिखा है। हम धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति महिमा प्रशंसा गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह की पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है, हर पल हमारे संग है। आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हालेलुया। आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव सर्विस में करना चाहते हैं। जैसे आप हमारे साथ जुड़े, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में आज भी एक महान कार्य करने के लिए योग्य है। हालेलुया। ईच न्यू डे हिज मर्सीज आर न्यू। वचन कहता है कि हर दिन उनका जो अनुग्रह है, कृपा है, वो नया है। It's new each day. So even this day, God has kept something new for us in store. हम उत्साह के साथ रहेंगे। हम we'll be thirsty, we'll be excited for God's word, कि जैसे हम प्यासे हैं, परमेश्वर आके हमसे बात करेंगे। हालेलुया। God will surely minister to us. और जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये लिंक अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए, परमेश्वर का वचन सुने, उनके लाइफ में भी परमेश्वर विश्वास को आगे बढ़ाए। आमेन। पास्टर आकर हमारे बीच में वचन बांटेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु इतने दिन से आपको और हमको संभाला, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। And even the Lord has been faithfully protecting us all these days. We will give Him the glory. काफी देश में काफी तकलीफ से हो रहा है, बारिश का कारण एक जगह से, और
अकाल एक जगह पड़ रहा है और बीमारी एक जगह पड़ा रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में हमें बचाने वाले यीशु मसीह आपके साथ में है। And we see that there's so much, things going on around the world. In one place there's famine, the other place there's so much rain, and there's even the pandemic affecting so many people. But God is so faithful with us. हालेलुया। Hallelujah. हम आज परमेश्वर आपके साथ में एक बात करने जाते हैं, कुछ नया चीजों के बारे में बात करने जाते हैं। And even this day the Lord will minister something new to us. हम प्रार्थना करते हैं, हम शुरुआत में स्तुति आराधना करने से जो बात परमेश्वर ने जो बात किया है, जो परमेश्वर के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने उत्तर थोड़ा लेट हो रहा है। And many a times, as we heard during the worship also, we pray to the Lord and there is some kind of a delay in our lives. काफी क्षेत्र से बहुत जगह से फोन आ रहा है, गवाही दे रहा है, परमेश्वर ने सबके जीवन में कार्य कर रहा करके। And we heard a lot of testimonies for various places, many phone calls saying that the Lord has done mighty things in their lives. तो अपने जो लाइव स्क्रीन देखे, यूट्यूब में, फेसबुक में देखे भी बहुत जन के जीवन में चंगाई हो गया करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। And a lot of people have been watching the live services. They received a lot of miracles and healings, and we give glory to the Lord alone. आज भी परमेश्वर आपके जीवन में नया चीज कार्य करने वाला है। And even this day, the Lord will surely do a new work in your life. खुशी के साथ एक बार हालेलुया करेंगे। And with joy, you say Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. हमें क्या करना है, कभी कभी अपने जीवन में जो जो समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। And many a times when we are facing various troubles, what are we supposed to do? तो हमें इंतजार करना पड़ता है। And we have to wait. हम कभी कभी जल्दबाजी में कुछ नुकसान में हो जाता है। And many times when we are in a hurry, we get into destruction and loss. और हम और आप कभी कभी क्या सोचते हैं, अपने जीवन में कोई भी चीज के बारे में हम सोच रहा है, तुरंत नहीं होता तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। And many times when we expect something to happen in our life, and if it does not happen in the way we expected, immediately we take some other action or decision. कोई बहुत जन मरमर करता है, स्ट्रगल कर रहा है। And we see many people, they keep grumbling at times. तो इसी कारण से अपने जीवन में कुछ रुकावट होता है। And because of our own murmurings and grumblings, there are a lot of delays. आज परमेश्वर आपके जीवन में क्यों रुकावट हो रहा करके परमेश्वर बात करने वाला And may the है। Lord speak and minister to us that why do we face various kinds of delays in our life at तो times. आज के संदेश का जो हेडिंग यही है, सही समय में परमेश्वर हमें विजय करने वाला है। And our God is a God who gives us the victory at the right time. आज के संदेश के लिए जो वचन जो परमेश्वर जो दिया है, पहला पत्रोस 5वां अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 5 verse 6। Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। Hallelujah. ये जो परमेश्वर का जो हाथ का अंदर रहना है, And it says that humble yourselves under the mighty hand of God. और तब परमेश्वर सही समय में आपको ऊंचा करने And वाला it है। says in due time, in the right time, He will exalt you. ये परमेश्वर का वचन है। This is the word of God. तो आपको जीवन में कभी कभी जो प्रॉब्लम आने के समय में आप क्या करना पड़ेगा? And when you face various kinds of problems in your life, the next step what you must do is परमेश्वर का वचन के ऊपर याद करना you पड़ेगा must remember the word of God. और आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना And you पड़ेगा। have to keep your faith on the word of तो God. आज परमेश्वर आपके साथ जो बात करने देते हैं, सही समय में आपके जीवन में कार्य करने वाला And है। He says in due time He will exalt you, and surely in the right time God will perform a miracle in तो your life. हम उसका अंदर रहना है, उसका हाथों का अंदर रहना है, हाथों को बाहर नहीं आना है। And it says that you have to be under the mighty hand of God. You must not try to get out of His hand. अगर परमेश्वर का हाथों का अंदर रहने से हमें सुरक्षित है। When we are under the mighty hand of God, we are protected and अगर आप preserved. बाहर आने के बाद शैतान आपको पकड़ेंगे। But if you're out, wandering away, many a time Satan is out there to destroy you. जीवन में समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, आपको जीवन में प्रॉब्लम भी आएगा। You might face troubles, trials, and problems in your life.
अब तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, इसका मतलब ये नहीं है आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगा। And because you have believed in the Lord, you have put your faith upon Him, it does not mean that you will not go through any kinds of problems. प्रॉब्लम आएगा, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है? There might be problems you might face in your life, but the answer to it all is, आपके जीवन में जो भी परिवार में जो भी चिंता है, जो भी प्रॉब्लम्स में समस्या है, दुख घटना है, मतलब कितना भी कुछ जो भी हो, आपको क्या करना पड़ेगा? and when you're going through all these troubles, situations when you're caught up in something, there's a lot of loss and destruction, your next step must be, हर बोझ को परमेश्वर को बस रखना है, take your burdens to the Lord, क्योंकि वो अपने ऊपर ख्याल करने वाला because है, He is concerned about us. आपको ऊपर नजर करने वाला He परमेश्वर है, cares for us. He looks upon us. आपका हर चीजों के बारे में वो याद करने वाला And He है। remembers everything about you. इसीलिए जो वचन नेक्स्ट में जो लिखा है चैप्टर वर्स 7, Casting all your care upon you, for He cares for you. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। Amen. उसको तुम्हारा ध्यान है, मतलब वो आपके ऊपर वो देखने वाला है, केयर करने वाला परमेश्वर है। And it says He cares for you. He's always mindful about you. कभी कभी आपका सामर्थ से, कभी कभी आपका ताकत से, कभी कभी विजय पाएंगे करके आप सोचेंगे, Maybe you might think that with my strength or my own abilities, I will gain the victory. आप सोचेंगे कभी कभी आपके जीवन में कुछ सक्सेस हो गया होंगे, Maybe you have faced some success in your life and you are victorious. तो सबके जीवन में ऐसा सक्सेस नहीं होता है। But everybody does not face the same kind of victory at all times. हम आज क्या करें, दूसरे के जीवन में सक्सेस हो गया करके उसके ऊपर अपने जीवन में कुछ मुरमुर कर रहा है। And many a times we're comparing our life with other people who are victorious in their life, and then we start grumbling and mumbling. जो कोई समझ लीजिए कोई अमेरिका गया तो हमको भी अमेरिका जाना है। Somebody has gone to the US and we say, oh, I also want to go there. जो हमको कोई भी शटल में जो गया तो शटल में भी हमको जाना है। If somebody's gone to the moon, I want to go to the moon too. तो इस तरफ जो मतलब जो ये नहीं है, जो परमेश्वर का अगर बेटा है बेटी है तो परमेश्वर के ऊपर आपको इंतजार करना है, उसके वचन के ऊपर आपको रिमेन रहना है। And if you're a son and daughter of God, what you have to seek is the will of God for your life. You have to wait upon Him. उसमें वचन में जो लिखा है, वचन 6 में लिखा है, मतलब जो परमेश्वर आपको जीवन में कार्य करने के लिए आपको उसका हाथों का अंदर, मतलब उनका अंदर आपको रहना है। In order for the Lord to perform His work in your life, you have to be under the hand of God. क्योंकि क्या होता है आपके जीवन में, समझ लीजिए आप विश्वासी हैं, लेकिन आपका जीवन में जो दुश्मन आपके पीछे पड़ेंगे। And we see that you might be a believer, but the enemy is always behind you. जो यीशु मसीह का एनिमी और आप नहीं है, पापी नहीं है, आप कितना भी पाप को किया होंगे, लेकिन आप परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। And remember, even though you maybe have lived a life of sin, you are not God's enemy. आपको ऊपर भी परमेश्वर प्रेम करने The वाला है। Lord loves you. तो क्या लिखा, परमेश्वर के जो दुश्मन और शैतान है, वही शैतान आपका भी शैतान है। Remember, आपका the दुश्मन enemy है। of the Lord God is your enemy too. वर्ष 8 में लिखा है, Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। It's a very important verse that we बहुत have बार read. परमेश्वर ने आपको बात किया है, लेकिन इसमें जो आज परमेश्वर कुछ नया तरीके से बात कर रहा है, याद रखिएगा, वो घूमते रहते हैं सिंह का सिर से, मतलब लाइन जैसे, मतलब किसको खा जाएंगे, किसको फाटेंगे, किसको नुकसान करेंगे, कैसे ढूंढते रहते हैं। And we see that the devil walks about like a roaring lion. He is walking around, roaming around, seeking whom he may devour. वो किसको पीछे ज्यादा पड़ेगा आपको पता है? And who is he after?
जो कोई अविश्वास के साथ में पीछे नहीं पड़ेंगे, He's not concerned about the unbelievers. क्योंकि वो उनका हो चुका है। The unbelievers already वो belong to उनमें him. सहायता करेंगे, मदद करेंगे, चंगाई करेंगे, बहुत कुछ करेंगे He वो। might help them, comfort them, he might do all the miracles for them because they belong to him. क्यों आपको पीछे पड़ रहा But है? why is he against the believers or children of God? क्यों आपको तकलीफ दे रहा है? Why is he behind, bent on giving you trouble? आपके जीवन में तकलीफ और टेस्ट आने के समय में आप यीशु को छोड़ के पीछे मुड़ेंगे। So he aims that when you go through various problems or troubles, that you will let go of the Lord God and turn and walk in his ways. हमें इसलिए कोई बहुत केयरफुल रहना है। Therefore, beloved, we have to be watchful and आज sober. परमेश्वर आपको साथ जो कुल्लम कुल्ला जो बात कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास रहना है, लेकिन समस्या आने के समय में आप पीछे मुड़ के नहीं जाना है। You have to keep your faith upon the Lord, and when you go through various trials, you must not let go of the faith and turn back. हम वचन में पढ़ेंगे 2 तिमोथियो, 2 तिमोथी 3 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। Persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. पौलुस जो कहते हैं 2 Timothy chapter 3, verse 11. और ऐसे दुखों में भी जो अंताकियो और इकुनियम और लूत्रो में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। वो पौलुस के सेवक समय में ये जो गया था, काफी क्षेत्र में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे दिया था। And we see that wherever Paul was ministering, he mentions that he went through much persecution and suffering. आप ये मालूम होना चाहिए उनको कौन कौन तकलीफ दिया है, सिर्फ आप विश्वासी नहीं है। And we see that the persecution or the trouble and the suffering that Paul bore, it was not only by the unbelievers. तो आप विश्वासी भी तकलीफ दिया है, Yes, the unbelievers वो tortured him. विश्वासियों को भी तकलीफ दिया And we see है। that even the believers had given उनके him खिलाफ बात trouble. कर रहा था, They spoke against उनके him. खिलाफ मुरमुर कर रहा था, They used to grumble against him. और उनको छोड़ दिया था कोई जगह पे। And many people even forsook him. आज भी वही हो रहा है। And even this day, such things happen each day. लेकिन पौलुस क्या करता है, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से परमेश्वर मुझे छुड़ा दिया है। But he says that from all of these things, the Lord delivered me. जो लिखा है वचन 12 में जो लिखा है, Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। ये सब सताए जाएंगे, मतलब यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप चलने की शुरू करने से आपको पीछे आपको तकलीफ आने And वाला we see है। that all those who start living a godly life for Christ, all those who decide to walk in a life that pleases the Lord, surely they suffer persecution. वो किसी के द्वारा आने दो, It might come through anybody. हो सकता है आपका घर के अंदर से शुरू होगा, The persecution might begin also from your own family. हो सकता है आप जो जॉब जो काम जो करते हैं वो क्षेत्र से आपको Maybe the आते होंगे। persecutions might arise at your workplace. हो सकता है आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, Anything can happen anywhere. लेकिन ये जो लिखा है ये आने वाला है, ये तकलीफ होने वाला है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास में रहना है। But even though we face or suffer persecution, the one thing we must do is hold on to our faith. मेरा प्रियो, आज परमेश्वर जो कहता है आपके जीवन में समस्या आने के बाद, तकलीफ आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? मुरमुर नहीं करना है, पीछे मुड़ के नहीं जाना है। My beloved, when you go through various trials and persecutions, don't grumble or murmur and don't turn back. तो वो जो इजिप्ट देश से, मिस्र देश से जो मूसा ने इसराइल सब लेके आने के समय में, And as Moses was leading the people of Israel out of Egypt, सब जन खुशी के साथ निकला है, everybody set out with क्योंकि joy. काफी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, रो रहा था, वो परमेश्वर का वो पुकारता था। ये देख के परमेश्वर ने उनको उधर से छुड़ाने के लिए We see that they were going through much suffering because they were slaves in the land of Egypt. Because of their outcry, the Lord sent them help. और उन्होंने परमेश्वर ने उनको लेके आने के बाद जो बीच में
काफी समस्या आ गया है। And as they were, as the Lord was leading them out, they did face much trouble. क्योंकि ये जो है 40 दिन का जो यात्रा था, उसको 40 साल तक चलना पड़ा था। We see that the journey was to be actually 40 days, but it took them 40 years to reach the promised land. अब ये तो हम बार बार जो पढ़ा है, लेकिन अब एक बार याद करो, 40 दिन कहाँ है, 40 साल कहाँ है। Just imagine, or you think you might know about this, but just meditate and remember that what is 40 days and where is 40 years. अब इसी तरह से, क्योंकि वो लोग मूसा के खिलाफ मुरमुर कर रहा था, And we see that they were murmuring against Moses, और परमेश्वर के खिलाफ भी मुरमुर कर रहा था, and they were murmuring against God also. और परमेश्वर को पसंद नहीं है। And God was not pleased. और मूसा ने बार बार उनके लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर इनको क्षमा करो करके। And we see that Moses was mediating for the people, saying that Father, God, you forgive them. और ये लोग क्या किया, ये लोग वापस नहीं, कंटिन्यू करने लगा। But we see that the people of Israel, they used to grumble against God. एक बार आपको पता होंगे, तो हम वचन में एक बार क्या हो रहा था, सबको खाने के लिए परमेश्वर क्या दे रहा था, सुबह सुबह मन्ना दे रहा था। And we see that God was feeding the people of Israel every morning with manna. और वो क्या कर रहा था, मन्ना के लिए मन्ना खा के और खुश रहता था। लेकिन इसमें जो लिखा है, जो बाद में मटन चाहिए करके वो रोने की शुरू किया है। And we see that मांस they खाने were के लिए। eating, this manna all these days, and then they started, asking, or the Bible says, lusting after meat. They wanted to eat meat after that. हालेलुया। Hallelujah. अब देख लीजिए, जो वचन में जो लिखा है, मूसा के सामने आके रो रहा था। And we see that they came and actually cried literally to Moses that we want to eat meat. और मूसा ने उसके बारे में बार बार बता रहा था, ये तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर तुम सब कुछ संभालने वाला है। And Moses was telling them, no, do not do such a thing. God is the one who is protecting you. हम वचन में पढ़ेंगे गिनती के किताब में, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 9। And when the dew fell on the camp in the night, the manna fell on it. Then Moses heard the people weeping throughout their families, everyone at the door of his tent, and the anger of the Lord was greatly aroused. Moses also was displeased. तब क्या हो गया था? और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब हम वचन 13 पढ़ेंगे। Where am I to get meat to give to all these people? For they weep all over me, saying, give us meat that we may eat. मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। आप देख लीजिए, सबको मांस खाने के लिए इच्छा हो गया। वो क्या बता रहा है, हम इजिप्ट मिस्र देश में हम सब कुछ खा रहा था, वो तो तकलीफ हुआ था, लेकिन हम मांस खाया, बहुत आनंदित करके वो वापस बार बार याद करते हैं। And now we see that after they actually left the land of Egypt, here they wanted to eat meat, and they started comparing and saying, though we were in slavery, at least we had all these things to eat. Now we want to eat meat. करके they started weeping. वो बता रहा है, बीच में बता रहा हमको वापस अपन जाएंगे, क्योंकि आपस में बात कर रहा है, ये जो हमें पसंद नहीं है, ये हमें जमा नहीं है, हम वापस मिस्र देश में जाएंगे करके मूसा से झगड़ा करने। And we see that many of them even started fighting with Moses, saying that it's enough that he is leading us here. We will turn back, we'll make new leaders for ourselves, and we'll go back to Egypt. तो परमेश्वर क्या बता रहा है? नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 26, 14-26 वचन में पढ़ेंगे। And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, how long shall I bear with this evil congregation who complain against me? I have heard the complaints which the children of Israel make against me. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं?
कि बुड़बुड़ाती रहते हैं करके मतलब समझ लीजिए ये जो ग्रम्बलिंग जो करता है परमेश्वर को पसंद नहीं है। And they kept complaining against God, and God was not pleased. जो बता रहा मैं कब तक मैं इसको सहन करूं, And he's saying, till when, how long will I bear this evil congregation? क्योंकि वो परमेश्वर को ये जो चीज कभी पसंद नहीं है। And God is not pleased with all these complaints that we continually give him. आपके जीवन में आपका परिवार में कुछ कमी होती हो तो सबसे पहले आप जो ग्रम्बलिंग करना बंद करना है। And when you go through any kind of trouble or suffering, any persecution in your family, the first thing you must do is stop grumbling against God. अगर आप मुरमुर करने से आपका जो आने वाला आशीष भी लेट हो जाता है। And many a times, because of your own grumblings, the blessing that was to be given to you, it gets delayed. उधर वचन में क्या लिखा था है, पहला पत्रोस में 5वां वचन में जो क्या लिखा है, मतलब जो उनका हाथों का अंदर देखना है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है, उसके लिए इंतजार करना है। And when he says, we read in the book of the Peter that we have to remain under the hand of mighty hand of God, which means you have to wait and tarry that he will perform something for you. तो उसका पहला आप अपने जीवन में आप झगड़ा करते रहेंगे और मुरमुर करते रहेंगे तो आपको नुकसान होने वाला है। And when you keep grumbling or complaining against God, you are the one who's going to face the consequences. तो अगर आप समझ लीजिए आप कुछ मटन कुछ कुक कर रहे हैं, Just imagine that you are cooking some non-veg अब सब चीज अच्छी तरह बनाने की आप जानते हो, and you know to cook very well. लेकिन कभी कभी तो आपको भूख लग गया करके जो मतलब जो कच्चा जो पूरा बॉयल नहीं वो रेडी नहीं उसको पहले आप लेके खा सकते हैं क्या? See, suppose that you are very hungry and while you're cooking, you are really hungry, and then can you actually start eating that meat which is uncooked? आपको सही है, आपको भूख लग रहा है, आपको मतलब आपको सही नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको हो जाते हो उसको खाने के लिए। Yeah, we understand. Okay, you are hungry. You are not able to bear your hunger, but that does not mean you go and eat raw, food. इसके लिए आपको इंतजार थोड़ा करना You पड़ेगा। have to wait for the time that meat must be cooked. परमेश्वर का समय आने के तब तक वेट करना है, You must wait and tarry upon the Lord for the right time to come. क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वो सही समय में देने वाला है। And God will surely give you everything at the right time. आपको ऊपर भी बहुत ज्यादा भविष्यवाणी किया होंगे, Maybe God has prophesied a lot of things over your life. क्योंकि वो भविष्यवाणी परमेश्वर के दास के द्वारा आया हुआ है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आया हुआ है। And it's come through the man of God, it's come through the word of God. Surely it's come from God. उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। But you have to wait upon the Lord. अगर उसका पहले आपने गड़बड़ करने से आपके जीवन में दूर आपको जो ब्लेसिंग जो आने वाला ब्लेसिंग भी लेट होता है। And if you do not tarry and wait upon the Lord, the blessing that was meant for you, that goes far away from you. तो सबसे पहले ये क्या होता है, अपने जबान के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग कम होता है। And many times it's because of your own tongue that you miss out the blessing of God. जो इसलिए लोग क्या कर रहा था, वो लोग आने थे में सब ग्रम्बलिंग इसलिए कर रहा था, मतलब आपस में बात कर रहा था परमेश्वर सुनने के लिए, मूसा के खिलाफ बात करके सब जन मतलब उनको भड़काने के लिए। And we see that they started complaining against God, complaining against Moses. They made parties together, groups together, complaining and grumbling so that they enticed Moses to get angry or enticed God to get angry. आपने देखा कभी ये लोग परमेश्वर को खिलाफ बात किया, मतलब हे परमेश्वर तुमने ऐसा क्यों करके ऐसा करके कभी सुना नहीं है। They did not speak directly to God saying, God, why are you doing this? They did not speak all these things directly to God. ये पीछे से जो बात करते हैं ना, आज परिवार में यही चीज बड़ा नुकसान पहुंचता है। But these people have been grumbling within themselves. They're grumbling with each other against Moses behind his back. ये कारण से आज आपकी यही समझ में होना है, आपके जीवन में आपके हृदय में लिख के रख दीजिए, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष आने के लिए रुकावट क्या है, ये जो चीज है परमेश्वर के खिलाफ, और आपको जो ग्रम्बलिंग नहीं करना है। And we see that many delays or hindrances in your life is due to your own grumblings at times. And today you learn that no more you will grumble. अगर परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देना है, खुशियां देना है, आशीष देना है, तो क्या करना पड़ेगा? And if you want to receive gladness, joy and happiness in your life, what you have to do is, आयुब की किताब में आयुब जॉब 36 वचन 11 हम पढ़ेंगे। जॉब 36:11। if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. आपके जीवन में
आप बोलेंगे मेरे जीवन में पैसा नहीं है, कमी इकट्ठी है, प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, खुशियां नहीं है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे सब दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। जो लिखा है परमेश्वर की सेवा करने का यही है, मतलब यही है, परमेश्वर का वो भी करना, आज्ञा पालन It करना says है। if they obey and serve Him, surely they will spend their days in prosperity. हालेलुया। Hallelujah. आपके जीवन में समझ लीजिए अच्छे दिन आने वाला है। Surely God has good days in store for your आप life. बोलेंगे मेरा सब कुछ खो गया, लेकिन मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा? लेकिन आशीष देने वाला है। Surely you might say that, oh my, I have lost everything in my life, but there is a blessing God has surely kept in store for परमेश्वर की you. स्तुति करना है, Start praising God. परमेश्वर का आराधना करना है, Worship Him. और परमेश्वर को भय मानना है। Fear the Lord परमेश्वर को पूरा तरफ से आपको विश्वास में रहना है, and remain in the faith. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। Keep your trust upon the Lord हर चीजों से परमेश्वर को पहला स्थान देना है, and give priority to the Lord first और सिर्फ परमेश्वर को स्तुति आराधना करना and है। worship Him alone. आमीन। Amen. अब आज से इतने चीज का करने की शुरू किया तो आपके जीवन में आएगा परमेश्वर का आशीष। And surely if you note these things down and you do perform it practically in your life, God will surely bless you. वो क्या बता रहा है? जो कोई दिन के लिए आशीष नहीं, पूरा साल तक संतान तक को आशीष We देने are वाला talking है। about your days. That's not just some particular days, but all your days. And we're talking about all your years. God will give you pleasures. परमेश्वर आज आपको जीवन में जो बात कर रहा है उसके बारे में आपको याद रखना है। And remember the word of God that the Lord is speaking and ministering to you today. हर चीज को एक समय रहता है, There is a time for everything under the sky. जो वो समय में सही चीज करने वाला And He's a परमेश्वर है। God who does everything at the due time. आप बोलेंगे मेरे जीवन में मेरा काफी समस्या, समझ लीजिए बहुत जन परिवार में आशीष नहीं है करके बहुत जन रो रहा है, पुकारता है, झगड़ा करता है, घर के अंदर से आपस में झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे से दोष लगाता है। And we see that a lot of problems arise in the families when there's a lot of trouble the family goes through, and then there are arguments, there are fights, there are there are a lot of confusion in the houses. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 स्वभाव पढ़ तीसरा अध्याय 1 पढ़ेंगे। To everything there is a season and a time for every purpose under heaven. जो उसमें लिखा है हर चीज को याद रखिएगा, हर चीज को जो आकाश से और पृथ्वी के अंदर से हर चीज को एक समय रहता है। 3 verse 1. हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और लिखे वर्स 5 पढ़ेंगे। A time to cast away stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing, अभी वर्स 4 पढ़ेंगे। a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. पत्थर फेंकने के समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। और अभी 4 वचन पढ़ेंगे। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। आप समझ लीजिए आपके जीवन में सपोज ये सकता हो सकता अभी रोने का समय है। Maybe you're going through a time in your life that's a time of weeping. आपको ये समझना है ये रोने का समय जो दिया है सिर्फ परमेश्वर दिया है। And these times and seasons are ordained by God. वो क्यों दे रहा है? आपके कारण भी वो दे रहा है। And He does it for your good. क्योंकि परमेश्वर जो है बता रहा है तुमको खुशियां देने के लिए, आनंदित करने के लिए वो समय है। There is a time to laugh and there is a time to dance that the Lord will grant to you. अगर जो चीज का इसका मतलब यही है, आप अच्छी तरह याद रखो, ये जो लिख के रखा है वो जो सब जन समय देके जो काम कर रहा है उसके बारे में परमेश्वर नहीं लिखा है। And this time when we speak about these seasons and times, it is not related to anything for people who see times and seasons. No. वो जन बोलेंगे इतना तारीख को, इतने समय में, इतने दिन को, इतना समय का अंदर ये करना है, ये नहीं करना है, नहीं तो ये होएगा वो होएगा कि बहुत जन बताता है। There are a lot of people who see times and seasons and they say that within this particular time or this particular day you're supposed to do these things, but
That's not acceptable. परमेश्वर को कोई चीज के लिए जो रखा है, आशीष देने के लिए एक समय रखा है। God has ordained the times and seasons, and He has kept a time specific for many everything. जो पर्टिकुलर जो सही समय में आपका परमेश्वर करने वाला है, He does it rightly in due time. आपको मालूम होना चाहिए था। ये जो एलिसा का भविष्यवक्ता एलिसा के समय में क्या हो गया है, हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा चैप्टर 4:13 पढ़ेंगे। सेकंड किंग चैप्टर 4:13 हम पढ़ेंगे। And he said to him, "Say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army?" She answered, "I dwell among my own people." तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। वो जो बता रहा है सुनेबेल का बारे में, जो बता रहा है वो बता रहा है, मतलब जो एलिसा जो क्षेत्र में जाने के समय में, जो गांव में जाने के समय में, वो जो स्त्री अपने घर पे उनको लेके जाता था। And we see that when Elisha used to visit this particular place, the Shunammite women, she helped them lodge in her house. और आप ये समझ लीजिए, वो उनकी गिनती करता, मेरा घर पे आइए, मेरे घर पे आप दर्शन करियो करके उसको गिनती करके अपने घर पे लेके जाता था। And we see that she knew that he was a holy man of God, and she pleaded with him that he must stay in their house in their upper room. तो इसके बारे में काफी टाइम से परमेश्वर ने आपके साथ बात जो किया है, लेकिन आज जो परमेश्वर जो कहने जाता है, मतलब जो समय के बारे में जो बता रहा है, परमेश्वर का आशीष के बारे में। And God is talking about times this day, and surely there's a time for a blessing. अब ये समझ लीजिए, जो परमेश्वर के सेवक को उसने मदद किया है, उनको अपने घर पे बुलाया है, उनके जीवन में आशीष पाने के लिए। And she has invited the man of God, holy man of God, into her house, and there was the beginning of blessings in her life. लेकिन एलिसा उनके सुनेमिया उनसे साथ कुछ मांगा नहीं है। And we see that the Shunammite woman, she did not go and plead with Elisha that I want this or that, and these prayer requests are there. No. एलिसा जो बता रहा है, अपने सेवक का बात बता रहा है, जाओ अपन कुछ इनके लिए कुछ कमी कटी है तो हम राजा से मांगो, किससे भाई बोलो क्या करके बता रहा है। And we see that Elisha voluntarily he wanted to ask her that, see, do you want something that we will give to वो बोले you? ना, मैं कुशल हूँ। But she says, no, I'm living with my own people, I have everything. और जो उसी समय में जो केयासी ने उनकी जो बता रहा है, उनको संतान नहीं है, वर्ष 14 में जो लिखा है। So he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, actually, she has no son, and her husband is old. तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए वर्स 14। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पिता बूढ़ा है। अब ये समझ लीजिए, वो घर पे कमी कटी है। Yes, there was a lack in this house. वो एलिसा से बता रहा, मैं कुशल हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरा कोई कमी नहीं है। She's saying that I live among my own people. लेकिन जो केयासी जो बता रहा है, ये उनका पति बहुत बुद्धर है, मतलब ओल्ड मैन है, उनकी संतान नहीं है। But here we see that Elisha's servant Gehazi says that her husband is very old and she does not have any children. अब याद रखो, कोई चीज आप बहुत बड़े पढ़ा होंगे, एक चीज अभी जो दिखा रहा है, वो क्या बता रहा है, उनको बुलाओ। Then he says, call her. तो क्या बता रहे, वेरी केयरफुल देख लीजिए, वर्स 15 में क्या लिखा है। And he said, call her. When he had called her, she stood in the doorway. Then he said, about this time next year, you shall embrace a son. And she said, no, my lord, man of God, do not lie to your maidservant. वो जो बता रहा है, वर्स 15 में जो लिखा है, उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। किधर खड़ी है? द्वार में। She was standing at the doorway. ये जो लिखा है, वो उसका पति बहुत उम्र का है। And we see that her husband was very old. वो जो स्त्री यंग है, And she was younger to him much. लेकिन वो कहाँ खड़ा है? दरवाजे पे खड़ा है, अंदर भी नहीं गई। And she's standing at the doorway with respect, and she did not even enter the अब room. देख लीजिए, तो कोई चीज का किस तरह से लिमिट रहता है।
Everything has a borderline and a limit in life. अगर आप लिमिट के अंदर रहने से आपके जीवन में आशीष है। And when you stand in your own limits, surely there is a blessing in अगर store. आपका जो लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो आपके जीवन में नुकसान है। And when you cross your own limits, that's when you invite destruction क्योंकि upon जो yourself. पवित्र जीवन बिताने के कारण में क्या होता है, And when you live a life that is holy, अगर पवित्र जीवन बिताने से आशीष किस तरह जो मिलता है, देख लीजिए। ये जो है वचन में जो लिखा है, उसके उसेन चैप्टर में 7वां वचन पढ़ेंगे, सॉरी 8वां वचन पढ़ेंगे। now it happened one day that Elisha went to Shunem, where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was, as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। ये जो है हमेशा वो जो एलिशा जाने के थे वही घर पे रहता था। And we see that he used to eat in this particular house whenever he came to Shunem. देख लीजिए जो स्त्री ने क्या जवाब, क्या गवाही दे रहा है एलिशा के बारे में। And we see that the testimony that she testifies about Elisha is, and she said to her husband, "Look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly." उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। ये देख लीजिए, ये जो एलिशा, आपको मालूम होना चाहिए एलिशा बुढ़ा नहीं है। And we see that Elisha was not a very old man. और वो जो उनका पति उम्र थे, And we see that her husband was old. ये भी जवानी, ये She स्त्री was भी young, जवानी। of course. आप देख लीजिए वो क्या बता रहा है, ये पवित्र भक्त, परमेश्वर का पवित्र भक्त है। And she's here saying he is a holy man of God. जो इस तरफ जो रहना बहुत जरूरी है। And it's आज very necessary, we must have such testimonies that we are holy children of God. आज परमेश्वर के नाम से बहुत जन परमेश्वर का कलंक बता रहा है। And there are a lot of people who are actually spoiling the name of God, naming themselves after children of God or man of God. तो उसी समय में भी बहुत जन किया था, हाँ जी भी वो हो रहा है। And it happened many years back and it's still happening each day. आप देख लीजिए जो स्त्री भी पवित्र स्थान में खड़ी है, मतलब जो उनका भी जो बात करने के तमीज देख लीजिए, उनके चाल चलन देख लीजिए, उतने पवित्र जीवन वो स्त्री बिताया And we see है। that she was a notable woman, she was a well respected, she knew her limits, she was very decent enough, she knew where she had to तो stand. परमेश्वर के दास के ऊपर, मतलब परमेश्वर का वचन के ऊपर वो प्रेम करती थी। And she had that fear and the love and reverence for the word of God. इसी कारण ने उनको अपने घर पे बुला दिया। And so she invited him for food. आप देख लीजिए उनके जीवन में जो कमी कटी जो हो गया, उनके जीवन में संतान नहीं है, बाकी हर चीज उनका है। She had everything, she was well to do, but one thing that they lacked was she did not have any तो son. इस तरफ जो स्त्री अपने दरवाजे में खड़ा रहने के समय में एलिशा ने क्या करते हैं, And then we see what Elisha the prophet spoke to her. वर्स 16। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, आप अपनी दास को धोखा न दे। ये देख लीजिए, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि वो उसको पता है अपनी पति उम्र का है। And she knows very well that her husband is old. वो एलिशा जो बता रहा है, जो उत्पत्ति के समय में, मतलब जो समय में परमेश्वर तुमको संतान देने वाला है। And here Elisha tells her that correctly at that particular season next year you shall embrace a son. वो जो बता रहा है वो स्त्री का बता रहा है, मेरे लिए आप ये वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटी छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। धोखा नहीं दे। Says, do not lie to your maid servant. परमेश्वर के दास बोल दिया तो बोल दिया, वो भविष्य वक्त ने And we बोल see that दिया। the man of God had prophesied, spoken over her life, and he has spoken. और वर्ष 17। But the woman conceived and bore a son, and when the appointed time had come, of which Elisha had told her. स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र
उत्पन्न हुआ। हालेलुया। Hallelujah. देखिए जो वसंत का जो दिन, जो फिक्स जो दिया हुआ है, परमेश्वर का जो योजना जो दिन है, जो परमेश्वर जो रखा दिन है, उसी समय में उनके जीवन में आशीष And मांगे we हैं। see that in the appointed time, she conceived a son. तो इसी कारण आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन के ऊपर आप विश्वास किया तो थोड़ा इंतजार देना है। And when you believe in the word of God, believe in the Lord Jesus, there has to be a waiting and a tarrying. जो हम एक्लेसिया में जो पढ़ा था, एक्लेसिया चैप्टर 3 वर्स 1 में पढ़ा है, हर चीजों को याद रखिए, हर चीजों को, हर कार्य को एक एक समय परमेश्वर ने रखा है तुम्हारे There लिए। is a time for everything. Verse 8 says, a time to love and a time to hate. आप समझ लीजिए, बहुत दिन के जीवन में कुछ शादी थोड़ा लेट हो रहा है, तो वो दिन के लिए आपके लिए जो रखा है वो दिन जरूर होगा। And if there's a delay in your marriage also, you must know and be aware that there is a time that God has ordained for you. अभी समझ लीजिए, किसी किसी के संतान जो लेट हो रहा है, तो परमेश्वर जो रखा दिन में होएगा जरूर। And if at all somebody has not had a child for long, God has surely kept an appointed time for you. परमेश्वर ने कुछ मतलब कुछ अच्छा कुछ जॉब के लिए आपको जो रखा है, अच्छे जॉब देने वाला, वो समय में देने वाला And you है। must be praying for a good job for yourself, but surely there is an appointed time God will give तो you. अपने जीवन में क्या नहीं करना है, वो चीज आपको याद करना है, ग्रम्बल नहीं करना है। And while in that waiting period, what you must do is not grumble and complain against आज God. हर घर पे भी झगड़ा इसीलिए हो रहा है, कुछ कमी कटी के कारण से आपस में झगड़ा करते रहते हैं। And of course, because of lack, we see some shortcomings in the houses, that there is some arguments and fights in many places. तो आपको ये होना चाहिए, याद रहेगा। अब यूसुफ का कहानी आपको सबको तो पता है, Many of us are aware about the story of Joseph. लेकिन यूसुफ के जीवन में क्या हो गया था, वो छोटी उम्र में जो 14 साल में वो क्या किया, वो सपना देखा था। And we see that when he was young, he had a dream. और उन्होंने बताया सब जन, मतलब जो अपने भाई लोग सब जन उनको सेवा करेंगे करके, मतलब उसके दंडवत करने वाले करके, हमने सपना देखा करके अपने भाइयों से भी बात किया है, अपने पिता से भी बात किया है। And we see that he spoke to his brothers about the dream that they would come and bow down to him, and he also shared the other dream with his father also. और यही यूसुफ का कहानी आपको सबको पता है। And we are aware about his life. वो पोतीफर के घर पे गया और बाद में वो जो जेल में जो गया है, And we see that then he was in serving in Potiphar's house. After that, he was cast in jail. आपको ये चीज आपको समझना जरूरी है, जो छोटी उम्र में जो परमेश्वर ने उनको दर्शन जो दिया है, सपना जो दिया है अपने बारे में, And we see that the dream that he had when he was a child, he was young. तो इतने साल में जेल में वो क्या करता था, सिर्फ जेल में मतलब ऐसा सोता था। You are thinking, what was he doing when he was in prison? Was he just lying around sleeping? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, उसके बारे में राजा का जो सपना जो देखा, उसके बारे में इन्होंने उनको आंसर दे दिया We है। see that he had the ability and God had given the spirit to interpret dreams, that even the Pharaoh's dream he could interpret. और इन बीच में जो साल वो क्या कर रहा है, जेल में क्या करता था? And what was he doing all those years when he, of course, saw the dream first, and after that now he's in prison? अपने पिताजी से अपने भाई को जो कहता था उसके बारे में वो याद नहीं किया होंगे। He's not remembering the things that he spoke. Do you think that he would have forgotten that he had shared this dream with his family? लेकिन ग्रम्बल नहीं किया है। But surely he did not हो grumble. सकता है उसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है यूसुफ ने, मेरा परमेश्वर ने मेरे सब जो किया है, जरूर मेरे ऊंचा स्थान में मुझे लेके जाएंगे करके। But Joseph, surely it's not mentioned, but he had that faith that what God has shown me, he will bring to pass, he will lift me, exalt me. कारण यही है, वो परमेश्वर से डरता था, Because he feared God. परमेश्वर से भय मान के जीता था। He used to live a life that is fearing God. आपको याद होंगे पोतीफर घर पे वो क्या बोल के गया वो, And we see that when he replied to Potiphar's wife, what did he say? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पति इसलिए नहीं डर रहा हूँ, मेरे परमेश्वर को मैं क्या जवाब दे दूं? And he says that what will I answer God उसको and my मतलब, master? इसका मतलब यही है, हर चीज परमेश्वर देख रहा है करके हमें पता होना चाहिए। And we must understand that God is watching each and everything. That fear you must have. अगर आप हर चीज को इस तरह सोचेंगे, मैं जो गलत कर रहा हूँ, मैं को पाप कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर देख रहा है, अगर कल मेरा परमेश्वर पूछे तो मैं क्या जवाब देंगे करके अगर आप मन का अंदर अगर सोचेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे। And when you have that fear of God, that what will I answer my God? When you have that particular thought and fear in your life, surely you will not do anything against God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब ये जो चीज देखना है, हर चीज को परमेश्वर को पहला स्थान देना जरूरी Give है। priority to the Lord at all times.
आपको क्या करना है। ये जो संसार में अगर आपको अच्छे जॉब मिल गया होंगे, अच्छा पढ़ाई मिला होंगे, और आपका जीवन कुछ भी कमी कटी नहीं हुएंगे, Maybe God has blessed you. He's given you a good job. He's given you all that you need. और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Continue thanking God for it all. और कभी कभी हम उसके खिलाफ बात नहीं करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। And do not complain or grumble against God. क्योंकि जो चीज आपके जीवन में आशीष देने वाला है परमेश्वर भी है, नुकसान देने वाला भी परमेश्वर है। We see that the one who can bless is God Himself, and the one who can even cause destruction is He only. वचन में ये लिखा है, मैं तुम्हारे लिए आशीष रखा हूँ, मैं तुम्हारे लिए श्राप रखा हूँ। He says, behold, I have kept for you blessings and curses. और एक जगह तुमको मैं जीवन रखा हूँ, अनंत का जीवन रखा हूँ, दूसरी जगह मैं नरक रखा हूँ। And He says, I have kept life and there is also death. तुमको डिसाइड करना कहाँ जाना But है। you are the one who has to choose what you want and वो where जो you लिखा have है to go. पहला सामुएल, फर्स्ट सामुएल दूसरा अध्याय 7वां वचन में जो लिखा है, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 2 वर्स 7। The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. यहोवा निर्धन करता है और यहोवा निर्धन करता है और धनी भी करता है। धनी भी करता है। वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। हालेलुया। Hallelujah. जो आपको ये समझना है, आपको उच्च स्थान में देने वाला है, करने वाला परमेश्वर है। You must understand God's the one who lifts you up. और उसमें जो लिखा है, अगर आपको नीचे रखना है, नीचे मतलब आप समझो ऊंचा स्थान से नीचे गिर गया तो भी वही कर रहा है। And if at all you have fallen from some height, which means from your higher position to something low, even that is God's doing. जो अगर आप काफी तकलीफ में गरीबी हो गया तो उसके कारण परमेश्वर रखा है। And it's God only who makes poor also, He makes rich also. कारण क्या है वो आपका वजह से। And but the reason why all these things happen, it's because of your own doings. और कभी कभी परमेश्वर आपका जीवन में अनुमति किया तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। And if God has allowed such things also to happen in your life, you must accept it. और उसी में से आप उड़ी जम मार नहीं सकता है, मतलब आपको उसमें से कुछ छोड़ के भाग नहीं सकता है। You cannot escape from the things that God has ordained for your life, but you must obey Him and continually live, and surely He will bring His word to pass. जजिस की किताब में 8वां अध्याय 22-23 में जो लिखा है, गिदोन के बारे में जो लिखा है, गिदोन ने वो मिडियान को जो इनके खिलाफ जो आया था, सबके खिलाफ मिडियान ने लड़ाई कर दिया है। And we see that we read about Gideon in Judges chapter 8, that he went and he actually fought with the Midianites. और वो जो सब जन जो क्या कर रहा था, जो अपना देश लोग सब जन क्या कर रहा, मिडियान के पास आके एक काम करो, तुम ही मेरा राजा है, तुम्हारा बेटा का बेटा सब जन हमें रूल करेंगे करके वो बता रहा था। And we see that they came and told Gideon that, see, you only become our king, you become our leader, and let your children come and rule over us. लेकिन गिदोन ने क्या बताया? But Gideon replies, क्योंकि विजय किया गिदोन करके सबको मालूम है, लेकिन परमेश्वर गिदोन के साथ में थे, इसी कारण गिदोन ने विजय पाया। and we see that of course people knew it was Gideon who went and fought the battle, but it was God who was with Gideon that actually gave him the वो victory. बता रहा था, तुम जाओ, तुम्हारे साथ में मैं ही रहूंगा करके। And God told him, go, I will be with you. और ये और किसी को पता नहीं है। And nobody knew this. और जो वो सब जन क्या समझते हैं, गिदोन बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत ताकत वाला है, कि सब जन उनको प्रेज करता था। And we see that people started praising Gideon for winning this battle, but they did not know it was God who had promised him that he would be with him. और गिदोन क्या कहा पढ़ेंगे वचन में 22-23। Chapter 8, verse 20-23. Then the men of Israel said to Gideon, rule over us, both you and your son, and your grandson also, for you have delivered us from the hand of Midian. तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिघान के हाथ से छुड़ाया है। वो क्या बता रहा है, अभी तुम और बेटा, तुम्हारा पोता, मतलब जो सन का सन, मतलब वो हमें रूल करने दो। लेकिन गिदोन ने क्या जवाब दिया है? But Gideon said to them, I will not rule over you, nor shall my son rule over you.
the Lord shall rule over you. हालेलुया। हालेलुया। तो क्या समझ लीजिए, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। आमीन आमीन। आपको क्या करना है, जो हर चीज के बारे में याद रखना है, अपने आप को ऊंचा नहीं करना है। You must understand, you must be humble in the eyes of God. Never try to lift yourself up. परमेश्वर जो कहता है तुमको humble रहना है। And when you are humble, the Lord says, humble yourself under the Lord's mighty और hand. कभी कभी क्या करते हैं, मेरे सामर्थ्य से मैं आगे कर दिया करके आगे बात नहीं करना You है। must never boast about your own abilities. Say that it's by my strength that I have achieved this क्योंकि and बहुत that. जन इसी कारण से अपने जीवन में नुकसान पाया है। And there are a lot of people who have gone through a downfall because of their own, all these boastings. हम वचन में पढ़ेंगे ड्यूटेरोनोमी, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है, बहुत जरूरी चीज आपके जीवन में क्यों नुकसान हो रहा है। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 8 वर्स 17। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि वह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। 17 में और एक पढ़ेंगे, सब जन When you अंडरलाइन say in करो। your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. और कहाँ ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। Hallelujah. कभी नहीं बोलना है। Never say this, that it's by your power and your might and your hand that you gained all this wealth and victory. हो सकता है आप ज्यादा पढ़ा लिखा होंगे, Maybe you are educated. बहुत बड़ा परिवार में आप जन्म हो गया होंगे, Maybe you are born in a very good, well-to-do family. आपका जीवन में बहुत पैसा भी होंगे। Maybe you have enough wealth. तो लेकिन एक बात याद रखना है, ये जो चीज आपको जो परमेश्वर जो दिया है, लेकिन आपका सामर्थ्य से नहीं आया करके। You must remember it's the Lord who has given it to you. It's not by your own power and might. जो पहले सामुएल में जो लिखा है, क्या लिखा है, जो परमेश्वर ने जो किसी को जो नीचे जो है उसके भी उठा के ऊंचा स्थान में रख सकता है। And in 1 Samuel it says that the Lord is the one who even picks up from the dust and he places them with princes. और जो ऊंचा जो है उसको नीचे भी गिरा सकता है। And he has the power also to bring the one on high down low. वो जिनके जीवन में हो चुका है, अपने पौल से किताब में लिखे रखा है। And we see that the Bible has recorded about these things, about these happenings in many people's lives. तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो कहता है परमेश्वर को स्तुति करना है। My beloved, God tells you, you give glory to God. परमेश्वर के ऊपर आपको आदर करना है। Give the respect and honor to God. और परमेश्वर जो हमें जीवन दिया है, हमें सुरक्षा दिया, हमें पढ़ाई दिया है, हमें सामर्थ दिया है, इसी कारण से मैंने ऊंचा आगे करके आपको हर बात बताना And you है। must give the glory to God, saying that it's because the Lord blessed me, the Lord's grace upon me, that all this education and this riches and the wealth and the success that I have received. और ये जो चीज के बारे में परमेश्वर आपसे बात जो किया है, आज से जो परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए आपको बात करना है। And even from this day, speak things that bring glory to God. जो सही समय में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य He करेंगे। says, in due time, He will lift you up. आपको वेट करना है, There is a time of waiting. आपको मुरमुर नहीं करना है, Do not complain during those times. आपको ग्रम्बल नहीं करना है। कभी कोई भी चीज का कमी कटी है तो ये ग्रम्बल नहीं करना है। Do not speak murmuring or grumblings against God during those times of waitings. आपका घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम कमी कटी हो तो दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है। And if there is some lack in your house also, don't sit around blaming one आपको another. यही देखना है, मेरे परमेश्वर ने मुझे अनुमति दिया है इस ताल में जाने के लिए, इस तरह मेरे जीवन में आने के लिए परमेश्वर अनुमति दिया करके आपको क्या करना है, चुपचाप बैठ के परमेश्वर को गिनती करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। You must have the understanding to say that God
has allowed this to happen in my life. Therefore, you must sit in the presence of God and you must talk to Him. और जो सही समय में परमेश्वर आशीष करेंगे, And surely, when you remain under the mighty hand of God, in due time, God will lift you up. क्योंकि उन्होंने ये क्या बताया है, तुम मेरे ऊपर तुम्हारा बोझ की रख दो करके। And He says, cast all your cares upon me. ये जो इसी कर्म में जो पत्रुस में जो लिखा है, तुम्हारा बोझ सब मेरे ऊपर रखो, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल करने वाला है, तुम्हारे ऊपर ध्यान रखने वाला है, तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला परमेश्वर है। And because He is a God who watches over us, He says, you cast all your cares upon me because I care for you. आपका आंसू में आपका आंख में आंसू आए तो उनका आंखों में भी आंसू आना है। When you have tears filling your eyes, He also has tears in His eyes. क्योंकि अपने के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो क्रूस उठा के हमको बचाने के लिए ये पृथ्वी में आया था यीशु Because मसीह। Jesus loved us so much that He came to deliver us and save us. He came into this world and took up the cross. तो समस्या आ गई तो आपको परमेश्वर का नाम बोलना है। Do not grumble against God अपने when you go through the time. जवान को कंट्रोल करना When है। you go through trouble, you control your tongue because do not complain against God. जो एरिको सामने आया था सब जन जाने के समय में जो काफी मुसीबत है, इस तरह कैसा पार करेंगे। And we see that when they had all these hindrances, the people of Israel, they were wondering how are we going to cross across. आज भी यही हो सकता है, मेरे जीवन में इस तरफ आ गया है, मैं कैसे आगे जाऊं। And there might be some hindrances in your life, blockages, and you might wonder then how am I going to cross and go ahead? मैं क्या करूं, What must I do कुछ next? भी रास्ता नहीं है करके आप सोचेंगे। And you might be wondering there's no path, no way. तो आपको एक चीज करना है, आपके सामने मूसा नहीं है जो समुद्र में जाके दिखाई गए समुद्र को अलग करने के लिए। You do not have Moses now to go before you and raise his rod and the sea must part. वही परमेश्वर आज आपका मेरे सामने खड़ा है But that same God who parted the sea is with you today. और वो बता रहा है जो है तुम्हारा क्या करना, स्तुति करना है। But He says that even what you must do is continue जो praising Him. परमेश्वर का वचन को विश्वास करके परमेश्वर का आराधना करना है। And keep your faith upon the word of God. Continue to worship Him. जो प्रॉब्लम जो आपके बीच में जो आया है, रुकावट निकल जाएगा। And all that hindrances and blockages in your life, surely the Lord will break it. आमीन। Amen. वो ऊंचा स्थान में लेके जाएंगे। He will exalt you in due जो time. चीज आपका जो रुकावट है उसी को वो स्टेप बना के, जो पत्थर बीच में जो गिरा हुआ, समझ लीजिए कोई जो जगह में लॉरी में डंबर में कुछ स्टोन गिराता है, उस तरफ आप पार नहीं सकता है। If at all you're traveling somewhere and there are some stones on the path that are a hindrance to you, a blockage to you, लेकिन वही पत्थर को स्टेप बना के ऊंचा स्थान में परमेश्वर खड़ा करेंगे। God can turn those stones into steps for you and lift you up. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। Let's give glory to the Lord and thanks to the Lord with faith. हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हे मेरा परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। Our dear Heavenly Father, we thank you at this time. जो अभी जो वचन जो सुना है, जो देख रहा है, हर भाई बहन बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, all those who are watching us this day, we pray for every brother, sister and children. आपको वचन के अनुसार प्रभु जो सही समय में सबके जीवन में आप काम करने वाला है। And we believe that, Lord, in due time you will perform your mighty work in their lives. सही समय में आप संगाई करने वाला In the है। appointed time you will heal them. सही समय में इनके जीवन में नया शुरुआत करने वाला And है। in the appointed time you will give them new beginnings. जो प्रभु जो रो रहा है आपके चरणों में, सबका आंसू पोंछ लीजिए। Lord, all those who are crying out to you, we pray you will wipe their tears. जो हम वचन में जो पढ़ा है, प्रभु जो रो रहा है उसको आनंद से बदलेंगे करके। Lord, your word says that you will turn our mourning into dancing. आमीन। आज आप इसमें आज से शुरुआत करके इसलिए आपको धन्यवाद We देते thank you हैं। that you have begun this good work in our lives. हर भाई बहन बच्चे के लिए प्रार्थना करता है जो क्या क्या चीज की जरूरत है, इतनी साल से आप जो आपके चरणों में जो गिनती करते हैं। Lord, we pray for all the brothers that whatever they are, Lord Father, praying for all these years, that you'll grant it to them. आज के दिन से करके दीजिए प्रभु। Lord, even from this day, you do it for them. आपको धन्यवाद देने के लिए मौका दीजिए प्रभु। Give us, Lord Father, days to give you glory. आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for hearing our prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। In the name of Jesus we pray. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करने के लिए आज से शुरू कर दिया है। My beloved, God has begun a new work in your life even from this day. आपके जीवन में जो परमेश्वर चंगाई किया है वो हमें बताइए, हम सब मिलके आपको
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। And if at all God has done a miracle in your life, share it with us so that we can give all glory to God. आमीन। Amen. प्रभु हम सबको आशीष करे। आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मुझे सचमुच आशीष मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता मुझे बुराई से ऐसे बचा कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे। सही समय में सही चीजों को देके आशीष करने वाला, चंगाई करने वाला, उदार देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमीन। आमेन। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप जैसे हमारे साथ जुड़े हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमसे बात किया है और प्रभु आने वाले दिनों में महान कार्य सही समय में आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। यू कैन like our page The Heart of Christ Church on Facebook. You can subscribe to our YouTube channel The Heart of Christ Ministries, ताकि जो भी मिनिस्ट्री की अपडेट्स हैं आपको वो मिले और आप हमारे साथ जुड़े रहे। आमेन। हफ्ते की जो मीटिंग्स हमारे चर्च के जूम पर चलता रहता है, ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को, अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको भी उसमें जुड़ा दें। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हैव अ ब्लेसेड डे टुडे एंड हैव अ ब्लेसेड वीक अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।